Cartesian will be taking Cartesian product of applied mathematics, discrete mathematics, and good afternoon to students. Today is 4th June 2021. So let's begin with the Cartesian product. Cartesian product of two sets is being denoted by cross. So suppose A is a set and B is another set. So the Cartesian product is being denoted as A cross B. Okay. Cartesian product of B and A will be denoted as B cross A. Cartesian product of A with A can be denoted like this. Cartesian product of B with B can be denoted like this. So suppose set A is equal to 1, 2, 3 and set B is equal to A, B. Okay. So Cartesian product of A cross B is equal to is being written as curly bracket and this is being written in the angular brackets less than greater than. तो पहला जो एलिमेंट है A का सेट A का पेयरिंग वन जो है वन मेंबर A का एक एलिमेंट है इस वन को इसके साथ में पेयरिंग करना है A के साथ में. So 1 comma A. Then the second one is 1 comma B. Okay. 1 को A के साथ में पेयरिंग करना है 1 कॉमा B और फिर 2 के साथ में भी करना है पेयरिंग 2 कॉमा A एंड देन 2 कॉमा B. सिमिलरली 3 के साथ में करना है 3 कॉमा A कॉमा B 3 कॉमा and curly bracket close. So this is the Cartesian product of A cross B. So we can calculate it like this. How many elements are there in this? There are total 3 elements in this. There are total 2 elements in this. So 3 elements and 2 elements. 3 cross 2. So when I find out the Cartesian 3 cross 2 is equal to 6. So total elements in this set be 6. So there are total 6 elements in this set. 1A, 1B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Similarly, if I calculate B cross A, Cartesian product of B cross A, it will be B first and then A. पहले B आएगा, फिर A आएगा. तो B के अंदर क्या आएगा? 1. A comma 1. A comma 2. A comma 3. B comma 1. B comma 2. B comma 3. B comma 2. B comma 3. Good. So again 6. 2 into 3 is also 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Now let's calculate A cross A. A cross A means finding out the Cartesian product of A with itself. इसका खुद का से Cartesian product निकालना है A का A से. तो A का A से क्या क्या आएगा? 1 comma 1. 1 comma 2. 1 comma 3. Very good. 2 comma 1. 2 comma 1. 2 comma 2. 2 comma 2. 2 comma 3. 2 comma 3. 3 comma 1. 3 comma 1. 3 1. 3 2. 3 2. 3 3. 3 3. How many total elements? 3 cross 3. Total elements in set A is 3. 3 cross 3 will be 9 elements. Similarly, B cross B is equal to taking Cartesian product of B with itself. A comma A. A comma B. A comma B. B comma A. B comma A. B comma B. B comma B. 2 into 2 is equal to 4. 2 into 2 is equal to 4. 2 cross 2 is equal to 4. So the total number of elements in this Cartesian product will be 4. So this is how do you find out the Cartesian product of two sets. Similarly, you can find out the Cartesian product and performing the intersection union operations also on this Cartesian
product. Say for example, if I say that A cross B and intersection, I can't draw the symbol for intersection over here, intersection B cross A, then what will be the output? A cross B, this part, and B cross A, इन दोनों का अगर मैं intersection कर रही हूँ तो what will be the intersection? The intersection will be 5 empty, 0 बनाकर उसको कट कर सकते हैं 5. Why? Because nothing is common. This 1A is not equal to A1. 1A is not equal to A1. ये गलत है. 1A A1 के बराबर नहीं है. So इन दोनों का intersection means common in both the Cartesian product is nothing. So it is being denoted by 5 like this. समझ में आ गया? Is it clear? Yes, ma'am. Okay, next. If I say A is blank, A set is blank, and B set is 1, 2, 3, then what will be the value of A cross B and B cross, not and, basically B cross A. So what is A cross B? 1, 2, 3. पेयरिंग कैसे बनाएंगे? 5 के साथ में 1, 2, 3 की पेयरिंग और 1, 2, 3 की पेयरिंग 5 के साथ में. So this will give you 5,1. No. A cross B will give you null 5 and B cross A is also 5. दोनों के दोनों empty है, खाली है. ठीक है. A सेट अगर खाली है और B सेट में एलिमेंट्स हैं तो अगर हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो it will be empty, it will be 5. There is nothing in the two sets. दो सेट्स में कुछ भी नहीं है. समझ में आए यहाँ तक? मैम दोनों सेट में से कोई एक सेट खाली रहेगा तो एम्प्टी आएगा. हाँ, 5 आएगा. हाँ 5 आएगा. ये सेट खाली है और ये सेट में एलिमेंट्स हैं तो A क्रॉस B खाली आएगा, B क्रॉस A भी खाली आएगा क्योंकि एक सेट खाली है. क्यों? खाली के साथ में क्या बनाएंगे? कुछ भी नहीं बना सकते. ठीक है. इसीलिए जैसे कि 0 into 1 करेंगे तो 0 ही होगा. Like this. Multiplication, right? Multiplication. Yes, ma'am. It works like multiplication. ठीक है. Okay. Next is, suppose if I say that A is equal to 1, 2, only 1, 2 ले लेते हैं. B is equal to A, B and set C is equal to X, Y. Okay. Now we have to find out A cross B. What is A cross B? 1, A, 1, A, 1, B, 1, B, 2, A, 2, B, 2, B, 1, B, 2, A, 2, B. 2 into 2 is equal to 4. 4. Okay, over. 4 over. Now I have to calculate A cross B. Okay. With this, I have to cross C. Then what will be the value? X, A, 1, X, 1, A. A cross ये वाला पहले आएगा. देखो A cross B. 1, A. एक मिनट. हाँ. X, 1, A, X, X, 1, A, B, नहीं. अरे इसको y आएगा ना मैम. x के बाद y आएगा ना. इसको इसके साथ में करना है, इसको इसके साथ में करना है. Then you switch to next. Yes, ma'am. पहले ये वाला इसके साथ में और फिर ये वाला इसके साथ में. Then second वाला x के साथ में, second वाला y के साथ में. Then third वाला x के साथ में फिर y के साथ में. फोर्थ वाला पहले x के साथ में फिर y के साथ में. So this will be y. Okay. Then next is 1, B, 1, B, y. X, 1, X, B, 1, B, B, Y.
y 2, a, x 2 2, b, a y x x 2, 2, b, a a, y ये है ना, y ए खत्म नहीं हुआ। यस मैम a, y हाँ फिर 2 and 2, b, 2, b, x x x। हाँ 2, with b, 2, y b, y ओवर। yes ma'am yes मैम 1a x 1ay 1bx 1by 2ax 2ay 2bx 2by over. So this yes is ma'am how do you calculate like this? 8 ठीक है 8 यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 4 into 2 4 into 2 8 4 into 2 8 हो गया। ठीक है नाउ यहाँ पे a क्रॉस b सपोज है और इसको हमको यूनियन करना है a क्रॉस c के साथ में। चल मी तो पहले हमने a क्रॉस b निकाल लिया यहाँ पे। ठीक है नाउ a एक क्रॉस सी क्रॉस निकालेंगे c निकालेंगे। सो हियर a क्रॉस c विल बी 1, x बोलते जाओ। इसका आएगा 1, x 1, y हाँ एक क्रॉस सी का 2, x x 2, y 2, y over close. Now yes now union of these two, इन दोनों का यूनियन। यूनियन नल क्या होगा? नल क्यों होगा भाई? यूनियन आई एम सेइंग यूनियन, इंटरसेक्शन नहीं बोला है। व्हाट इज यूनियन? यूनियन मैम मीन बता रहे दोनों हाँ, मिक्स दोनों का दोनों का मतलब सारा आएगा सारे एलिमेंट्स। ये पूरे Yes, एक ma'am. एलिमेंट्स, इसको पूरे 1, a एलिमेंट्स को पूरे 1, b 2, a 2, b 1, x 1, y 2, x 2, y हो गया। दैट विल बी यूनियन। yes ma'am yes मैम ठीक है टोटल इसको हम दोनों फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज x all elements of a and all elements of b, or x is such that x all elements of a and all elements of c। इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखेंगे इसको। अगर मैं x के फॉर्म में लिखती हूँ x, y such that x exist e वाला symbol exist वाला, this is e exist a, I can't draw the symbol। यहाँ exist e वाला जो symbol रहता है ना वो है exist, and ये जो inverted symbol रहता है and y exist in b और x exist in a and y exist in c and brackets close। I'll just correct it। ठीक है इसको राउंड ब्रैकेट में ले देते हैं क्योंकि हमने वहां पर स्क्वायर ब्रैकेट लिया हुआ है। ये एग्जिस्ट का सिंबल है। ठीक है ई इज एग्जिस्ट सिंबल। आई विल शो यू लेटर ऑन। इसके सिंबल्स जो है वो मैं बता के बताऊंगी। तो इसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया? रोस्टर फॉर्म में। एक्स वाई सच दैट एक्स एग्जिस्ट इन ए एंड ऑपरेटर, ये ऐसे वाला एंड ऑपरेटर, वाई एग्जिस्ट इन बी, दिस इज एग्जिस्ट इन बी, और दिस इज और, ये एंड है ना, मल्टीप्लीकेशन मतलब x के सारे एलिमेंट्स एंड y के सारे एलिमेंट्स जिनको कार्टेशियन प्रोडक्ट किया और किया, दिस इज यूनियन इज और x के सारे एलिमेंट्स और y के एलिमेंट्स। सो वी कैन राइट लाइक दिस
x के सारे एलिमेंट्स a में एंड y के सारे एलिमेंट्स c में. So this can be written in the roster form like this also. ठीक है, रोस्टर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं हम ये. ओके, आगे बढ़े. यस मैम. यस मैम. डोमेन रेंज. डोमेन किसको बोलते हैं, रेंज किसको बोलते हैं. सपोज a is equal to कैपिटल A is equal to, I just remove this part, ये complete हो गया. Domain and range. Okay. Let a be this and there is some relation r which gives the result as 2 comma a, then 1 comma b, okay, 2 comma a 1 comma b, ऐसा कोई एक रिलेशन बना हुआ है. तो हम क्या बोलेंगे, we will say that 2 and 1 these belongs to domain. ये डोमेन को बिलोंग कर रहे हैं और a और b जो है ये दूसरे सेट को बिलोंग कर रहे हैं, दैट इज रेंज. तो ये जो पहले वाला एलिमेंट है वो डोमेन कहलाएगा, ये एक डोमेन है, और ये दूसरा वाला जो है वो b, ये a और b जो है वो रेंज है. सो वी राइट लाइक दिस, रेंज एंड डोमेन. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रेंज एंड डोमेन विल बी इन द रिलेशन. कोई भी एक रिलेशन है जिससे हमारा ये आउटपुट आया है, तो इसका ये वाला पार्ट को डोमेन में जाता है, फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला वी कॉल इट इन द रेंज. ओके, inverse relation can be written as, suppose r is any relation which is given, we have to find out the inverse of r. r inverse निकालना है, r के ऊपर -1, r raised to power of -1, that is r inverse, inverse relation. So any relation which is given to you from a to b, a to b is a set, a set is given to you, b set is given to you, and relation from a to b is already given. a to b relation क्यों है, क्योंकि यहाँ पर डोमेन में क्या है, 1, तो 1 किसका पार्ट है, ए का, तो ए टू बी रिलेशन है. ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पर 1 है तो ये सेकंड इसमें रेंज में 1 है, क्यों, क्योंकि रेंज में जो है एलिमेंट वो सेकंड इसके हैं, बी सेट के, तो सब उसको मैच करना चाहिए. वी कैन नॉट राइट लाइक दिस, ऐसा रॉन्ग होगा, क्योंकि 1 जो है 1 बिलोंग्स टू सेट ए एंड b belongs to set b, so it is a relation from a to b, so it should be like this. So this relation is already given to you, ये रिलेशन आपको दिया हुआ है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ दिस रिलेशन. इनवर्स लिखना मतलब डोमेन को रेंज बनाना है, रेंज को डोमेन बनाना है. 1a लिखा है तो a1 लिखा, 1b लिखा है तो b1 लिखा, b1 कर दिया, 2b दिया हुआ है तो b2 लिख दिया. सो दिस इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड द इनवर्स ऑफ अ रिलेशन. ठीक है, अगर मैं इसका फिर से इनवर्स निकालूंगी तो क्या आएगा, इफ आई कैलकुलेट इनवर्स ऑफ इनवर्स रिलेशन, सो व्हाट विल बी द आउटपुट, इनवर्स ऑफ इनवर्स रिलेशन, ये क्या आ जाएगा, 1a, 1 comma a, हाँ 1, इसका 1 1b, कॉमा है, 1b और 2b आ जाएगा. मतलब इनवर्स 2b. ऑफ इनवर्स रिलेशन इज इक्वल टू रिलेशन इटसेल्फ. इनवर्स ऑफ इनवर्स रिलेशन इज इक्वल टू रिलेशन इटसेल्फ. ओके, नाउ let's find out the identity relation. Identity relation, a relation R in a set A is said to be identity relation, that is being denoted as IA. कैसे डिनोट करते हैं, I और इसके बेस में A, बेस में नीचे A है, IA. I'll show you the symbols later on. So identity relation IA is being denoted as this. If X comma Y, x comma x, that is identity, खुद का खुद से relation, such that x exists in A. एक ही का खुद ही से relation, x exists in A, खुद का खुद से relation, that is called as an identity relation. तो मैं 1 का relation निकाल रही हूँ, suppose ये A का identity relation निकाल रही हूँ, A identity A set का नाम हो गया, तो इसका relation निकाल रहे हैं. इसका रिलेशन कैसा है, खुद का खुद, 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 1. ओके,
So we have created a identity relation like this. So this is an identity relation. 1 comma 1 2 comma 2 x comma x ये नहीं आएगा, 2 comma 1 नहीं आएगा, 2 comma 2 आएगा, 1 comma 1 2 comma 2 ये क्लोज, क्योंकि x comma x है ना, दोनों सेम होने चाहिए। जितने एलिमेंट्स इसके दिए हुए हैं उसका खुद का खुद से रिलेशन, अगर वो खुद का खुद से रिलेशन है तो वो आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। 1 comma 2 2 comma 1 है तो फिर तो वो क्रॉस हो गया, मतलब सारे एलिमेंट्स ले लिए, 1 comma 1 1 comma 2 2 comma 1 2 comma 2, तो वो चारों एलिमेंट्स आ गए, वो क्रॉस हो गया, ए क्रॉस ए। बट हम आइडेंटिटी रिलेशन निकाल रहे हैं, जब हम आइडेंटिटी रिलेशन निकाल रहे हैं तो एक्स कॉमा एक्स के फॉर्म में आएगा एंड एक्स एग्जिस्ट इन ए, तो एक्स कॉमा एक्स मतलब दोनों सेम होने चाहिए, डोमेन और रेंज सेम होने चाहिए, तो दैट इज एलिमेंट क्या है यहाँ पर 1, तो 1 का 1 से रिलेशन और 2 का 2 से रिलेशन, इफ इट इज सो देन इट इज कॉल्ड एज अ identity relation. Okay, then the third one is the universal relation. A relation R in a set A is said to be universal relation if R is equal to A cross A. Universal relation के लिए क्या है, if relation R is equal to A cross A, A cross A है तो हम उसको क्या बोलेंगे, relation is universal relation. Suppose A set is equal to 1 comma 2 and let's find out A cross A. So A cross A in this case will be 1 comma 1, पूरे लेना है, 1 comma 2 2 comma 1 2 comma 2. So this will be the universal relation which consists of all elements of A in a Cartesian product form. Cartesian product के फॉर्म में है तो उसको हम क्या बोलेंगे, universal relation. Void relation किसको बोलेंगे, a relation R is in a set A is said to be void relation if R is a null set. अगर R is equal to null set है then it is called as the void relation. इसको क्या बोलेंगे हम, void relation. Okay, did you get these? समझ में आ गया? Yes, ma'am. Okay, किसी को कुछ पूछना है? Do you want to ask anything? No, ma'am. So now I will just switch over to the next concept and then I'll give you some questions also to do. Suppose A is equal to 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 8 and this is equal to B set also. Then find out A relation B if and only if A is equal to B. Okay, how do you find out? Capital A is equal to 1 2 3 4 8. I'll just remove the upper part. Capital A is equal to 1 2 3 4 8 and that is equal to B also. We need to find out A relation A if and only if small a is equal to B. A relation B if and only if A is equal to B. So this is possible. A relation B if and only if A is equal to B. दोनों का खुद से रिलेशन, अगर वो दोनों बराबर है तो, so this will be A relation B. ठीक है, ये A relation B, A एलिमेंट्स किसको बिलोंग करते हैं, A एलिमेंट्स A सेट को बिलोंग करेंगे, B एलिमेंट्स किसको बिलोंग करेंगे, B सेट को. ठीक है, तो अगर A रिलेशन A निकालना है, if and only if A is equal to B, so it will be 1 comma 1, then same 2 comma 2, हाँ 2 comma 1 नहीं आएगा, 3 comma 3 4 comma 4 and 8 comma 8. हाँ, जो हमने अभी देखा था, क्या देखा था, ये कौन सा रिलेशन रहता है, दिस इज एन आइडेंटिटी रिलेशन, देखा था. ठीक है, अब अगर सपोज यही दिया हुआ है तो व्हाट विल बी द डोमेन एंड रेंज, व्हाट विल बी द डोमेन, डोमेन के सेट के एलिमेंट्स लिखो और रेंज के एलिमेंट्स बताओ. डोमेन मैंने बताया, डोमेन 1 2 3 4 8 1 2 3 4 8 and
what will be the range? 1 2 1 2 3 4 8 8 सेम है. क्यों? क्योंकि ए और बी सेट जो है वो दोनों ही सेम है. ओके. सपोज अगर क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि रिलेशन इज लाइक दिस, if A is less than B, A is B is less than A is less than B, कुछ भी कंडीशन दी हुई है, then you have to find out the relation. रिलेशन के अंदर डोमेन निकाल लो और रेंज निकालो. What will be the domain values and what will be the range values? If the relation is such, A relation B, if and only if B is less than A, then what will be the value? So you have to find out the corresponding domain and range. Domain और range corresponding values find out करनी है. और corresponding मतलब जो domain में लिस्ट लिखोगे वो range की corresponding values आएगी. तो B is less than A. B क्या हो गया? B हमारा ये, इसमें से डोमेन और रेंज किसको बोलेंगे? A will be in domain part, B will be in range. So range should always be less than the domain part. तो रेंज में जो भी नंबर होगा वो डोमेन से छोटा होगा. ठीक है. Now tell me क्या आएगा यहाँ पे? B is always less than the domain. 1, ठीक है, 2 3 4 8. सपोज मैंने ऐसा लिखा. ठीक है. अब रेंज में क्या लिखा? रेंज में 1. बी छोटा है, इससे बड़ा क्या हो गया? ये 2 हो गया. तो 1 और 2 का पेयर बन गया. रिलेशन कैसा बना? ये 1 जो है, रुको इसको बनाने के पहले चलो एक चीज करते हैं. रिलेशन लिखते हैं. रिलेशन इज इक्वल टू क्या लिखा? पहले हमने ए रिलेशन भी लिखा, दैट सच दैट बी इज लेस देन ए. बी इज लेस देन ए. चलो बताओ क्या आएगा? 2, 1. देन 2 2 ये हम बाद में लिखते हैं. 2, 1. ठीक है. देन 3, 1. 3, 1 2 कुछ भी आ सकता है. ठीक है. देन 4 1 4, 1 2 कुछ भी आ सकता है. 8 1 4, 3 लिखा. ठीक है. 8, 4. ठीक है. ये हमारा रिलेशन है. तो इस रिलेशन में डोमेन क्या हुआ और रेंज क्या हुआ? डोमेन विल बी 2 2 3 4 8 और इसमें रेंज क्या हुआ? 1 1 2 3 4. सो इट विल बी लाइक दिस. ये करस्पॉन्डिंग जो डोमेन और रेंज लिखते हैं ये करस्पॉन्डिंग है. 2 और 1 का पेयर है. ये 2 और ये 1 का पेयर है. इसको ऐसे लिखना है. ठीक है. ये 2 का 1 के साथ में पेयर है, 3 का 2 के साथ में पेयर है, 4 का 3 के साथ में पेयर है, 8 का 4 के साथ में पेयर है. सो इट इज लाइक दिस. ओके. सो नाउ आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग. अब मैं थोड़ा सा डिस्कस. So let's consider a problem. A is equal to R. Consider the following relation on A. A relation in A. A related to B. If and only if A square plus B square, A square plus B square is equal to 25. मतलब जो डोमेन का वैल्यू है उसको स्क्वायर करेंगे, जो रेंज का वैल्यू है उसको स्क्वायर करेंगे, और जब उनको प्लस करेंगे तो वी शुड गेट 25. सो व्हाट विल बी द वैल्यू इन द डोमेन एंड रेंज? ऐसा कौन सा नंबर लिखूं जो यहाँ पर लिखने से इसको स्क्वायर और इसको 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 लिखने से इन दोनों को प्लस करने से 25 आएगा? 9 4 3 4. A square is equal to B square is equal to 25. What will be the value of A and B? A related to B, so that A square is equal to B square is equal to 25. A का स्क्वायर करने 3 से and 4
ए का स्क्वायर करने से 25 आना चाहिए। ए में वो वाले एलिमेंट्स डालने हैं, डोमेन में वो एलिमेंट्स डालने हैं जिनका स्क्वायर करने से 25 आएगा। किस नंबर का स्क्वायर करने से 25 आता है? 5 5। और कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने से 25 आता है? 3 इंटीजर। + 4 इंटीजर जिसका स्क्वायर करने से 5 आता है। इंटीजर जिसका स्क्वायर करने से 5 आता है। -5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? -5 का स्क्वायर क्या आएगा? 25। +5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 25 तो ए स्क्वायर किया तो 25 आ गया, बी स्क्वायर किया तो 25 आ गया। ओके, सो डोमेन विल कंसिस्ट ऑफ -5 and 5, range will consist of -5 and 5. Okay, now I'll take one more problem. Set A consists of 1 2 3 4 5. Set B consists of 1 2 3 4 5 6. Find A cross B. A cross B find out करना है, and our relation R is a relation such that A plus B should be less than equal to 9. So what is A cross B? Quickly, 1, 1 पूरे एलिमेंट्स लिखेंगे। 1, 1 1, 1 चालू है 1, 3 1, 1, 4 4 1, 5 5 1, 6, ठीक है, कॉमा देन 2, 2, 1 2, 2 2 2, 3 2, 3 2, 3 2, 4 2, 5 2, 5 2, 6 6, ठीक है, ऐसे ही सारे लिखेंगे। पूरा लिख लिया 3, सब, 1 ठीक है, यहाँ तक लिख दिया हमने। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट अ रिलेशन R such that A plus B is always less than equal to 9. क्या निकालना है? A plus B should always be less than equal to 9. मतलब मैंने यहाँ पर 3 का भी लिखा, 3 की लाइन भी लिखी, 3 के साथ में सबका ये पूरा सेट जो है वो 3 के साथ में लिखा, 3 के साथ में आएगा ना। थ्री 3, 1 3, 2 3, 3 3, 4 3, 5 6, इसके साथ में 4 के साथ में भी लिखा। तो आप मुझे बताओ कि रिलेशन में A plus B should be less than equal to 9. कौन से एलिमेंट्स आएंगे A और B के जो लेस देन 9 होंगे, जिनका प्लस लेस देन 9 होगा? जल्दी बताओ, दो नंबर जिनका प्लस लेस देन 9 होगा। ये हो गया हमारा लास्ट 5 वाला। जल्दी से बताओ, दो नंबर जिनका प्लस लेस देन 9 होगा। ए और बी की कौन सी वैल्यू होगी जिनके लिए लेस देन 9 होगा? ये 9 है क्या? प्लस 4, 5 4 ए प्लस बी शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू 9, 9 से कम होना चाहिए। तो ये लेस देन 9 है, 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 5 6 7 8 लेस देन 9 है। यहाँ तक पूरे लेस देन 9 हो गए। फिर उसके बाद में फिर उसके बाद में 4 6 7 8 ये लेस देन 9 हो गया, ठीक है, 5, 3 तक 7 8 ये पूरा सेट आ गया हमारा लेस देन 9। दिस इज द आंसर। इसके बाद मैं असाइनमेंट दूंगी, यू हैव टू